Hello, good evening, everybody. Okay, so once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, uh, today it is 22nd December 2025. Okay, I have got some good articles from the Hindu again. Okay, what articles we are going to discuss today? It is President grants assent to the Rural Jobs Bill, and government lists 4 focus areas for works. Get the point? Okay, so it is now at the final stage of the Viksit Bharat guarantee for Rozgar and Ajivika mission Grameen. Okay, VBG Ramji. This bill, which replaces Narega, has got presidential assent, and now formally it has become an act. Okay, till yesterday I was calling it a bill, but today I am supposed to call it an act because it has received presidential assent. Okay, what are the 4 key areas I will tell you, and some other things which are also discussed in that. Okay, then railway to hike fares from December 2026. Congress criticizes the move. Okay, why railway want to? Why? Ministry of Railways want to increase or enhance the fares for travel in the trains. Okay, this is what is there in the article. Okay, before that, I want to discuss with you some issues pertaining to the railway sector in India, how it faces numerous challenges. Okay, I will also discuss that with you people. Okay, and apart from that, I will also discuss, some other areas in the bill itself. Okay. Now, the next article which I will be discussing is winter is behind. This is related to the winter session of the parliament, which has recently concluded. The bulldozed demolition of Narega. Manrega has been replaced by Viksit Bharat Grameen Rozgar Ajivika Mission, Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Okay. Sonia Gandhi, first time I have found she has written a wonderful article. Okay, although it has some political taste also, but the points raised are very good. Okay, so lessons from China for tackling pollution. Okay, what lessons we should learn from China and how Beijing has reduced its PM 2.5 particulate matter 2.5 content in the atmosphere. Okay, the lessons which India should also learn, because we are also currently grappling with a big environmental pollution problem. Okay, now let us start with the first article, that is President grants assent to the Rural Jobs Bill. Rural Jobs Bill, again the same bill which I just mentioned. It is Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, which has replaced now what? The MG Manrega scheme has been replaced, which was brought in 2005. Okay. Now, what are the core issues, core concerns? I will discuss all of them. I'll discuss all of them one by one with you people. Just be patient. I will just try to make you people understand. Okay, yesterday or day before yesterday, I got one comment in the comment box that I need to be bilingual. Okay, so मैं दोनों languages में focus करके I will try to make you people understand. ठीक है, तो आपको पता होगा basics में मैं already बता चुका हूँ कि मनरेगा, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Now it is a thing of past. Why? Because it has been repealed. It has been repealed and it has been replaced by the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar Ajivika Mission. Guarantee for Rozgar Ajivika Mission. Okay. Sorry. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Rozgar and Ajivika Mission Grameen. VBG Ramji, 2025. 20 years later, we have lost one scheme which was considered as umbrella scheme for employment in rural areas. Okay. Now, government faced severe criticism from opposition, but still हमने ये बिल पास करके इसको एक रियलिटी बनाया. ठीक है. अब इसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि वीबीजी रामजी में हमने 4 कोर एरियाज पे फोकस करना है, कि जो काम होंगे वो 4 कोर एरियाज में काम करने हैं. ठीक है, 4 कोर एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर वर्क्स. ओके, नाउ ये कौन से होंगे 4 कोर एरियाज? हम सबसे पहले वी विल वर्क ऑन वाटर सिक्योरिटी.
वाटर सिक्योरिटी पे हम कैसे काम करेंगे? लाइक हम नरेगा के अंडर जैसे अलग अलग एसेट्स बनाते थे, अब हम वीबीजी रामजी के अंडर में कौन से एसेट्स बनाएंगे? वी विल मेक वेल्स, एक्विफायर्स एटसेट्रा, बाउलीज एटसेट्रा। ओके, दूसरा कोर एरिया जो बताया गया इस आर्टिकल में काम के लिए वो कौन सा है? इट इज लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा? लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड टू लाइवलीहुड है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे पास कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, वेयर हाउसेस की कमी है, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय फार्मर्स, वो लॉस हो जाते हैं ड्यू टू वेस्टेज, ड्यू टू रेनफॉल और अदर थिंग्स। तो ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो लाइवलीहुड से रिलेटेड है, उनमें वो भी हम जो है वीबीजी रामजी के अंडर टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन के रिलेटेड कुछ शेड्स वगैरह बना दें हम, ठीक है, कुछ हम प्रोटेक्शन वॉल्स ऑन रोड्स, ताकि रोड्स का स्लाइड्स ना हो। एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। ओके, एक्सट्रीम वेदर को मिटिगेशन करने के लिए, डील करने के लिए हम जो है और भी क्या करेंगे, ये बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और लास्ट वन इज कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लेन ड्रेन्स आती है, पाथ्स आते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये 4 एरियाज बताए गए कि इन 4 एरियाज में हम फोकस करेंगे। ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो रिलीज करते हुए बताया कि ये एरियाज पे जो है हम फोकस करेंगे एमजी नरेगा का जो रिप्लेसमेंट है वीबीजी रामजी उसके अंडर। ठीक है, और हमने क्या रखा है इसमें भी बताया गया है कि विकसित भारत गारंटी जो है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के अंडर में हम अराउंड 1,51,282 करोड़ एक बजट जो है वो पहले से ही एलोकेट करके रखेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बजट जो है वो, इतना बजट जो है वो रिजर्व किया जाएगा। दिस विल बी अ बजट रिजर्व्ड फॉर जी राम जी। गेट द पॉइंट? अब ये तो एक आर्टिकल हो गया जो बता रहा है कि अब ये एक्ट बन गया और इसमें ये फीचर्स हैं। ठीक है, और ये कहता है कि जो नया एक्ट है, ये वाले नए एक्ट ने क्या किया, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए। किसके अंदर? मनरेगा के अंदर। दिस एक्ट हैज ब्रॉट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मनरेगा। लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या सही हैं, क्या गलत हैं, इसके ऊपर अभी भी क्रिटिसिज्म जो है वो इवॉल्व होता चला जा रहा है। ठीक है, अब फीचर्स में मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं अगले पॉइंट पे, अगला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल, वंडरफुली रिटन आर्टिकल, आई मस्ट टेल यू कि इसमें अगर मैं जो इसकी पॉलिटिकल, इसमें से जो पॉलिटिकल बू आ रही है उसको अगर मैं साइड पे छोड़ूं, पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो बड़े अच्छे जो है वो रखे गए हैं इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो ये है इसमें कि मनरेगा जब 2015 में मनरेगा जब 2005 में एक्ट बनाया गया था, इसके ऊपर कंसल्टेशन किया गया था 13 मंथ्स पहले से, 13 मंथ्स कंसल्टेशन, और उस कंसल्टेशन के बाद यूनानिमसली इसको लाया गया था। यूनानिमसली द बिल वॉज पास्ड। आज इतनी अपोजिशन के बावजूद भी सिर्फ कुछ घंटे में हमने जल्दी जल्दी इस बिल को पास कर दिया। ठीक है, सो इसमें हमने जी राम जी बिल का जो है क्रिटिसिज्म क्या किया कि जी राम जी बिल जो है हमने क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी राम जी बिल जो है वो क्विकली जो है हमने उसको पास कर दिया विदाउट कंसल्टेशन। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या क्रिटिसाइज किया कि इसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, ये सही नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस आर्टिकल का कहना है कि रिमूविंग द नेम ऑफ महात्मा गांधी इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। मींस वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हकीकत उससे भी ज्यादा बड़ी है और हकीकत उससे भी ज्यादा पेनफुल है। दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल की हकीकत जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ी और इससे भी ज्यादा पेनफुल है। ठीक है, पेनफुल कैसे है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इस बिल को पास करने से पहले डिस्कशंस बिल्कुल नहीं हुआ, कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, डिस्कशन नहीं हुआ पहले तो, कंसल्टेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ
कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम था, तो इसको इंटेंसिवली ग्लोबली स्टडी भी किया गया था, इवेलुएट भी किया गया था। तो इस स्कीम को हटाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी सक्सेसफुल स्कीम जो है इतने पास से चल रही। दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड इन द आर्टिकल। डिस्कशंस नहीं हुआ, कंसल्टेशंस भी नहीं हुआ, और इसका जो रियल इंट्रिंसिक फीचर था, वो दो फीचर्स थे। क्या क्या थे? ए, इट वाज डिमांड ड्रिवन, कि जितना लोग डिमांड करेंगे काम, उतना काम मिलेगा और उतनी पेमेंट भी होगी, फ्लेक्सिबल बजट होगा, ये भी आपने खत्म कर दिया। दूसरा, ये आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इमेनेट होता है। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, और वो कहता है कि स्टेट को एफर्ट्स लगाने चाहिए लोगों के लिए राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए। तो आपने इस आर्टिकल से राइट टू वर्क भी सिक्योर नहीं किया। ठीक है, तो ये एक और चीज है जो इसमें हाईलाइट की गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है वो मैं आपको आगे अगले पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल ये आप यहां से पढ़ लेना, लेकिन इसके फीचर्स के नोट्स जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनको आप यहां से थॉरोली पढ़ लेना। ठीक है, उसने ये भी कहा कि इसमें राइट टू वर्क फॉर ऑल ओवर इंडिया की वजह से, अब इसका पहला एक क्रिटिसिज्म क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप। वो कैसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप हुआ? उसने कहा कि मनरेगा जो है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था। अब ये जो वीबी जी राम जी, ये वाला स्कीम जो है ये ओनली टू रूरल एरियाज आइडेंटिफाइड बाय सेंटर। अब सेंटर आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया कि एक तो सेंटर को एक्सट्रीम पावर्स देके आपने डिसेंट्रलाइजेशन की जगह क्या कर दिया? सेंट्रलाइजेशन कर दिया इस स्कीम का। पहले ये स्कीम डिसेंट्रलाइज्ड थी, अब आपने इसको क्या कर दिया? वापस सेंट्रलाइज कर दिया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा वैलिड क्रिटिसिज्म है। ठीक है, दूसरा, आपने प्री डिटरमाइंड बजटरी एलोकेशन, आपने जो प्री डिटरमाइंड बजटरी एलोकेशन किया, बजट पहले से ही डिटरमाइन कर दिया, अराउंड 1,51,000 करोड़ जो आपने बजट एलोकेट कर दिया, उससे ज्यादा ऊपर अगर जाना हो स्टेट्स को आपने क्या कर दिया? वो बर्डन आपने स्टेट्स पे डाल दिया। ठीक है, एक्सेस बर्डन किस पे है? स्टेट्स पे। अब जब स्टेट्स को पता है कि वो बर्डन उन्हीं को बियर करना है, तो स्टेट्स इस स्कीम को वॉलंटियर नहीं करेंगी, कभी भी इस स्कीम को वॉलंटियर नहीं करेंगी ताकि ये इंप्लीमेंट हो पाए। क्यों? क्योंकि जब बर्डन इंक्रीज होना ही स्टेट्स पे है, तो उससे क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? नेक्स्ट चीज जो आपने क्या किया कि पुरानी वाली जो ऑल ईयर राउंड गारंटी थी, उसमें आपने सीजनल ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? सीजनल ब्रेक्स। अच्छा, सीजनल ब्रेक्स कौन आइडेंटिफाई करेगा? टू बी आइडेंटिफाई द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई कौन सा पीक सीजन है। स्टेट्स करेंगे आइडेंटिफाई कौन सा पीक सीजन है, 60 डेज का पीक सीजन। उस टाइम पे कोई भी वर्क जो है वो आप नहीं रखेंगे, आप उस टाइम पे कोई भी वीबी राम जी के अंडर काम नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? इससे दो चीजें हो जाएंगी। नंबर 1, फोर्सिंग रूरल पुअर लेबरर्स टू वर्क इन एरियाज अगेंस्ट देयर विल, अपनी चॉइस के अगेंस्ट वो काम करेंगे। अच्छा, अगर उनके पास नरेगा का काम होता था पहले, तो उनके पास ऑप्शन होता था। वो पहले लोगों को कहते थे हमें एमजी नरेगा के अंडर 270 रुपीज या जितना भी पर डे वेज मिल रहा है, कम से कम आपको उससे ज्यादा वेज मुझे प्रोवाइड करना होगा, तब मैं आपके पास काम करूंगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर।
This is what this article has highlighted, that bargaining power of farmer has got a serious dent. तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, इससे क्या होगा, जब बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर कम हो गई तो उससे क्या होगा, इससे आपने वेज ग्रोथ को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया. इट विल सप्रेस द वेज ग्रोथ. मींस वेजेस अगर बढ़नी भी होती, अब नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो इस 60 पीरियड में फ्री है, 60 डेज के पीरियड में वो फ्री है, तो वो अवेलेबल रहेंगे काम के लिए. ठीक है. उसके बाद कॉस्ट शेयरिंग रेशियो, another demotivator for the states, cost sharing ratio. कॉस्ट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, एक और डिमोटिवेटर है, डिमोटिवेटर फॉर स्टेट्स. क्यों डिमोटिवेटर है, क्योंकि हर स्टेट को पता है कि 60% कॉस्ट सेंटर ने बेयर करना है, 40% कॉस्ट स्टेट ने बेयर करना है. तो स्टेट्स ऑलरेडी, मेजॉरिटी स्टेट जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो वो क्यों चाहेंगी कि एक और फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने ऊपर बिल्डअप करें. इसलिए वो इस स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत वो हो जाएगा. ठीक है. प्लस हर प्लान जो बनाते थे इसमें एमजी नरेगा में, वर्क्स वर रिकमेंडेड बाय ग्राम सभा. वर्क्स प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्राम सभा. तो आपने उसको भी थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखा. तो विच मीन्स 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसने पंचायती राज को क्या करा, पूरी तरह से स्ट्रेंथन करा, आपने उसको भी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी डेंट दे दिया. ठीक है. उसके ऊपर नेक्स्ट क्या है कि आपने डेज तो बढ़ाए, 100 डेज earlier, now you have increased it to 125 days. ठीक है. but reduced availability of worker. क्यों? क्योंकि ब्रेक है. availability of works due to the seasonal breaks. प्लस इसका मैंने आपको पहले भी डेटा बताया था कि 100 डेज अगर सिर्फ अक्रॉस कंट्री जब सर्वे किया गया, सिर्फ 9% के आसपास लोग जो है वो 100 डेज यूज कर रहे थे. 91% लोग लेस देन 100 डेज ही यूज कर रहे थे. तो जो 100 यूज नहीं कर रहे थे वो इतने कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में 125 क्यों यूज करें. ठीक है. तो ये सारी चीजें भी जो है ये बताई गई है इसमें. ठीक है. उसके अलावा आपने क्या किया कि आपने एक अपना इमरजेंसी पैकेज जो है उसको थोड़ा सा, नरेगा जो है वो उसको कहा जाता था इमरजेंसी लाइन. क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सिर्फ 2 चीजें जो है उन्होंने इमरजेंसी लाइन की तरह काम किया. ठीक है. एग्रीकल्चर या रूरल लोग बच गए बिकॉज ऑफ नरेगा वर्क्स वर अवेलेबल, सो देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन नरेगा. डिमांड्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, मेजॉरिटी लोगों ने नरेगा के अंदर काम करके उनको पैसा मिला. ठीक है. तो आपने इमरजेंसी लाइन जो थी 2, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और स्कीम, ये आपके पास थी इमरजेंसी लाइन कोविड-19 के टाइम पे. और दूसरा था आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. अब इस एक्ट में भी कई सारी चेंजेस की गई हैं, डाइल्यूशन थोड़ा सा किया गया है. हालांकि इसके थ्रू आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चलाई, जिसमें आपने फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को. तो आपने एक इमरजेंसी लाइन अपनी जो है वो थोड़ा सा हॉल्ट कर दी. ठीक है. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा होता, कंसल्टेशन सही से किया होता. इस आर्टिकल का कहना है कि अगर कंसल्टेशन सही से किया होता तो शायद ये रिजल्ट ना होता. ठीक है. इसमें एक फ्रेज यूज किया गया है, किसके लिए फ्रेज यूज किया गया कि एमजी नरेगा स्कीम के लिए पहले बजट कट्स, फिर बजट को पॉज कर देना, फिर स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल या बाकी कई एरियाज में फंड्स का प्रॉपरली ना पहुंचा पाना. तो इस तरह से पहले से ही इससे कट्स, पहले से इसमें जो है इश्यूज आ रहे थे. लेकिन आपने क्या किया, नरेगा को किल किया. डेथ बाय 1000 कट्स. गेट द पॉइंट. ये फ्रेज यूज हुआ इसमें. ठीक है. मीन्स के लिए थोड़ा रहते हैं इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि इसको आप पॉलिटिकल डायमेंशन छोड़ के इकोनॉमिक डायमेंशन से देखो तो ये मतलब काफी हद तक क्रिटिसिज्म्स वैलिड भी हैं.
ठीक है। लेकिन जब एक पेरेंट प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम में माइनर चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस की जा सकती है, ठीक है। अब ये बजटरी एलोकेशन के प्रोविजंस पे रीथिंक किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट्स जो है ये सीजनल ब्रेक जो आइडेंटिफाई करेंगे इसके ऊपर रीथिंक किया जा सकता है, ठीक है। और रूरल पुअर लेबरर्स को रीथिंक किया जा सकता है। अच्छा, बेस्ट फीचर मुझे इस स्कीम का जो लगा, एमजी नरेगा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक्स बहुत सारे कंट्री के एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट ने वो प्रॉब्लम हाईलाइट की थी। वो प्रॉब्लम थी कि लोग जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट होके इतने ज्यादा आइडल हो चुके थे कि उनको लगता था कि साल भर के लिए जो खर्चा है वो हमको एमजी नरेगा से मिल जाएगा। तो इसकी वजह से लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आइडलनेस बहुत ज्यादा प्रमोट हुई इस स्कीम की वजह से। जो मुझे बेस्ट चीज लगती है कि आइडलनेस जो है वो कम हो जाएगी इस स्कीम से। लोग अब और काम ढूंढने लगेंगे, दूसरे काम, क्योंकि अगर विकसित भारत जो वीबीजी रामजी स्कीम है, अगर उस स्कीम से उनको 60 दिन का बीच में ब्रेक मिल रहा है तो उसमें वो आइडल नहीं रह के हो सकता है कोई दूसरा काम ढूंढे। समझ रहे मेरी बात को? तो आइडलनेस जो है डेफिनेटली इससे कम हो जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग देयर टाइम प्रोडक्टिवली। वंडरफुल आर्टिकल, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, रेलवेज टू हाइक फेयर फ्रॉम डिसंबर, कांग्रेस क्रिटिसाइजेस द मूव। व्हाई कांग्रेस क्रिटिसाइजेस द मूव? बिकॉज कांग्रेस इज इन ऑपोजिशन, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी ट्रेन में जो फेयर है, अगर आप अप टू, ये इस आर्टिकल में बताया गया है, अगर आप अप टू 215 किलोमीटर्स, सॉरी, अप टू 215 किलोमीटर्स अगर आप ट्रेवल करते हैं, अप टू 215 किलोमीटर्स ऑर्डिनरी ट्रेन में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज इस फेयर में नहीं है, ठीक है। अगर आप मोर देन 215 किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं तो 0.1 पैसा, 0.1 पैसा, ओके, 0.1 पैसा, कितना? 0.1 पैसा, ओके। और अगर आप नॉन एसी क्लास में, सॉरी एसी क्लास में ट्रेन करते हैं, अगर आप एसी क्लास में ट्रेवल करते हैं, ऑल ट्रेन्स, तो इट इज 0.02 पर किलोमीटर, 0.01 पैसा नहीं है, सॉरी 0.01 रुपी पर किलोमीटर, 0.01 रुपी पर किलोमीटर। गेट द पॉइंट? मतलब 10 पैसा 20 पैसा, इस तरह से। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे 500 किलोमीटर की जर्नी करोगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, ये सब क्यों किया? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इश्यूज इन इंडियन रेलवेज, इश्यूज इन रेलवेज, ठीक है। हालांकि ये आर्टिकल में तो नहीं दिए, लेकिन ये जस्ट मैं आपके सामने कुछ इश्यूज आपको हाईलाइट करके बता दूं कि ये मूव को जस्टिफाई किया जा सकता है। कांग्रेस ऐसे ही इसको क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है कि हमारे पास रेलवेज में पहला इशू है डिटीरियोरेटिंग फाइनेंशियल हेल्थ। रेलवे सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ पूरी तरह से डिटीरियोरेट हुई है, ठीक है। रेलवे सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ पूरी तरह से डिटीरियोरेट हुई है, ठीक है। वो कैसे इसमें, क्योंकि अगर देखोगे आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021-22, वो ये कहती है कि हमारा जो रिसीट्स है वो कम है रेलवेज के ऊपर और खर्चा ज्यादा है, ठीक है। कॉस्ट, इसमें एक पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है रेलवे का? इट इज 107% प्लस, 107% से ज्यादा। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे में आप 107 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग रेशियो इतना ज्यादा है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? वो इतना है, ठीक है। अब ये भी बोला है कि अगर आप देखोगे कि अगर जो हम पेंशन दे रहे हैं रेलवे के मुलाजमों को और जो हम कोचेस का रिन्यूअल कर रहे हैं, अगर वो वाला एक्सपेंडिचर भी डालोगे तो 109 हो जाएगा। लेकिन अभी ऑपरेशनल रेशियो जो है वो कितना है? 107। पहला ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एसेट रिन्यूअल जो है, ओवर एज्ड एसेट रिन्यूअल, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है,
ठीक है। पुअर एसेट रिन्यूअल, कि आपके ओल्ड एज ट्रैक्स हैं, डैमेज्ड ट्रैक्स हैं, आप उनको रिन्यू नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपके जो नए एसेट्स है, न्यू रेलवे लाइन बोगीज बनाई, जाके कहीं पे गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया, तो पुअर एसेट रिन्यूअल है। वो क्यों एसेट रिन्यूअल है, इसमें ये बताया गया है कि ओवर 34,000 करोड़ रुपीज आर रिक्वायर्ड फॉर एसेट रिन्यूअल, ठीक है। ओवर रुपीज 34,000 करोड़ आर रिक्वायर्ड। तो ये फंड भी आपके पास फंड डेफिशिएंसी की वजह से ही, क्योंकि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट ही इतना ज्यादा है, तो फंड डेफिशिएंसी की वजह से आपके एसेट रिन्यूअल जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है। उसके बाद पुअर क्राउड मैनेजमेंट, पुअर क्राउड मैनेजमेंट एंड स्टेशन मैनेजमेंट। स्टेशंस भी बहुत पुअरली मैनेज कर रहे हो, क्राउड भी बहुत ज्यादा पुअर मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब इस सब के लिए रेलवे ने क्या कहा कि थोड़ा सा अगर 5 रुपए 10 रुपए किराया बढ़ाया जाएगा 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के ऊपर, तो उससे अप्रोक्सीमेटली ₹6,000 करोड़ हम क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, 6,000 करोड़ जो हम क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा एनवायरमेंटल सब चैलेंजेस, बाकी सारी चैलेंजेस जो हैं वो सारी चैलेंजेस को मैं अभी साइड पे रख रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि मेनली हमारा इस जगह पे फंड सबसे ज्यादा जरूरी है, इस वजह से फंड्स को इंक्रीज करने की जरूरत है, इस वजह से रेलवे ने ये स्टेप ले लिया। वेरी गुड स्टेप, ओके, वेरी गुड स्टेप, बिकॉज हाँ, इट मे हिट पुअर अ बिट हार्डर, लेकिन पुअर्स अब 6,000 या अब 600 800 1000 1500 किलोमीटर जब आप ट्रेवल करोगे तो 5-10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना भी अफोर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है। ये रिगार्डिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। विंटर सेशन अभी पार्लियामेंट का कंक्लूड हुआ, जिसमें कितनी सिटिंग्स हुई, टोटल 15 सिटिंग्स हुई, ठीक है। कितनी सिटिंग्स हुई, टोटल 15 सिटिंग्स। लेकिन ये माना जाता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन था। डिस्पाइट ये भी इसमें कहा गया है कि कई सारे बिल्स हमने पास किए, 10 बिल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से आपने 8 पास कर लिए, ठीक है। और 100% एफडीआई अलाउ कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में, वो वाला बिल भी पास कर दिया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर सेक्टर, ये भी आपने पास कर दिया। शांति बिल, हाँ, शांति बिल को भी आपका शांति बिल को भी प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, ठीक है। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहा गया है कि बिल्स का क्रिटिसिज्म हुआ लैंग्वेज पे, बाकी चीजों पे, लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई हैं, ठीक है। कि आपने वंदे भारत के मातरम के ऊपर 11 घंटे लोकसभा में खर्चा कर दिए और 13 घंटे राज्यसभा में खर्चा कर दिए, विच इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 प्रोडक्टिव आवर्स, 11 इन लोकसभा एंड 13 इन राज्यसभा। किस चीज पे, एक ऐसी चीज पे जो डिस्कशन करना ही नहीं, यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कर देते कि हाँ 150 साल हो गए वंदे मातरम को, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो आपने इसको यूज कर दिया अपोजिशन की ये चेक करने के लिए, अपोजिशन की नेशनल फीलिंग्स को, या अपोजिशन के नेशनलिज्म को, या अपोजिशन के पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन करने के लिए आपने इतना ज्यादा मेयर पॉलिटिक्स इतना टाइम वेस्ट हो गया। एक तो ये चीजें हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ये हाईलाइट किया गया कि कई सारे बिल्स जो हैं वो रश कर दिए गए, बहुत तेजी से पास कर दिए गए, ये टाइम भी यूज किया गया होता तो डिस्कशन और ज्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है। और दूसरा ये भी बताया गया कि आपने डिबेट किया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सिर्फ डिबेट किया आपने, उसमें भी आपने इतना ही 24 घंटे आपने खर्चा करे, 13 घंटे लोकसभा में और 11 घंटे जो है आपने राज्यसभा में खर्चा किए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। वो भी टाइम जो है बचाया जा सकता था विदाउट एनी प्रॉपर, उसमें भी आपने सिर्फ वोट चोरी एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की, ये बात कहीं और की जा सकती थी। और इसके ऊपर अगर अमेंडमेंट्स लाना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने हैं, तब डिस्कशन करो ना, सिर्फ डिस्कसिंग मेयर फॉर डिस्कशन पर्पस, टाइम वेस्टेज, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारी चीजों को जो है कहा गया है, ठीक है। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमने जो है कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या अपोजिशन वाले, उसमें एक कस्टम होता है कि जब पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हो जाए उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, इनको इनफॉर्मली इनवाइट करते हैं, किसके लिए, टी के लिए। तो उन्होंने वो टी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, दे एक्सचेंज फ्यू गुड मोमेंट्स देयर। बट ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि
because of declining in the time, because of declining in time and declining in the sittings and sessions in the parliament, उसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो पूरी तरह से थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटास हैं जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट लोकसभा हुआ था समर सेशन में, उसमें यह कहा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में जितना भी टाइम एलोकेटेड था, उस एलोकेटेड टाइम में से लोकसभा ने केवल अपना 29% टाइम यूज किया गया था और राज्यसभा ने कितना, सिर्फ 34%। 29% of the time was utilized and 34% of the time was utilized by Rajya Sabha. Remaining time was disrupted by unnecessary discussions and arguments. Unnecessary discussions and arguments. इसकी वजह से कई सारे बिल्स जो हैं वो या तो आप बहुत जल्दी पास कर रहे हो या तो वो लैप्स हो जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑनलाइन गेमिंग का बिल आपने लाया और आपने उसको केवल 6 मिनट में पास कर दिया, ना उस पर कोई डिस्कशन हुआ ना कुछ हुआ, और 6 मिनट में आपने उसको पास कर दिया, ठीक है। मर्चेंट शिपिंग बिल 20 मिनट में पास कर दिया, ठीक है। और आपने डिस्कशन किस बात पे किया, अपोजिशन सिर्फ इल्जाम लगाती रही रूलिंग गवर्नमेंट पे और रूलिंग गवर्नमेंट उसी का जवाब देती रही, किस पे, ऑप सिंदूर पे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में 50% ऑफ द टाइम वाज ड्रेन्ड ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, ठीक है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कहां से आते हैं, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये कहां से होते हैं और इनका क्या पर्पस है और ये क्या है। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए रेगुलरली फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस और डिस्कसिंग लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और इस कौन ऑथोराइज है सेशन बुलाने के लिए, सेशन बुलाने के लिए प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड, प्रेसिडेंट शेल समन द सेशंस। अच्छा, और दूसरा कि 2 सेशंस के बीच का गैप जो है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से कम होना चाहिए, शेल बी लेस देन और इक्वल टू 6 मंथ्स, ओके। और एक तीसरी चीज इसमें स्टिपुलेट की गई है कि ये जो सेशंस बुलाए जाएंगे, प्रेसिडेंट जो बुलाया जाएगा और प्रेसिडेंट ही उसको खत्म भी करेगा। टू कंक्लूड अ सेशन, टू फॉर्मली एंड अ सेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन एंड समनिंग ऑफ सेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एक सेशन जो हमारी कंट्री में 3 सेशंस होते हैं, वो होता है पहला सेशन जो बजट सेशन होता है जन फेब मार्च में, देन दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन, जुलाई अगस्त में मॉनसून सेशन और फेब मार्च में बजट सेशन। बजट सेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लॉन्गेस्ट सेशन, जिसमें ओनली डिस्कशन इज ऑन द बजट्स एटसेट्रा। जो अभी रेलवे का फेयर हाइक किया गया उसके लिए एक क्रिटिसिज्म लोगों ने ये किया कि यही चीज बजट में होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो बजट में इसलिए नहीं किया गया, अपोजिशन ये कह रही है कि बजट में इसलिए आपने नहीं फेयर हाइक किया कि आप फिर बजट की इमेज खराब होने का डर है आपको, तो आपको ये बजट के साथ करना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, अब ये सेशन जो है, एक सेशन 2 सिटिंग्स, एक सेशन में कई सारी सिटिंग्स होती हैं, पर डे 2 सिटिंग्स होती है, एक मॉर्निंग सिटिंग होती है 11 to 1 और दूसरी सिटिंग होती है आफ्टरनून सिटिंग्स, ठीक है। तो 11 to 1, 2 to 6 पोस्ट लंच सिटिंग एंड मॉर्निंग सिटिंग, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें पॉलिटी से रिलेटेड है, बेसिक पॉलिटी पार्लियामेंट के चैप्टर में अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअली हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, ठीक है। तो ये विंटर्स इज बिहाइंड, इसका ये आर्टिकल का मतलब है कि हमारा जो सेशन है वो खत्म हो चुका लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। हमको चाइना से क्या क्या लेसन सीखने चाहिए अपने पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए। जैसे हमारी कंट्री में दिल्ली है, ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंट्री, चाइना में बीजिंग है। इसका कंपैरिजन किया गया कि बीजिंग में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर विद अ रेडियस ऑफ 2.5 माइक्रोन्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स जो सीधा लंग्स में भी और ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स मोस्टली आल्सो एसोसिएटेड विद मेजर कार्डियक अरेस्ट्स आल्सो, ओके। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर 2013 से लेके 2021 तक, पिछले 8 सालों में अगर आप देखोगे चाइना ने 50% से क्या कर दिया, इनको रिड्यूस कर दिया। और कैसे पॉसिबल हुआ चाइना से, चाइना सबसे पहले क्या किया, पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज को शट डाउन करा, ठीक है। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को चाइना ने क्या करा, मैं अगले पेज पे लिखूंगा कि चाइना ने क्या क्या किया है अभी तक इस
फील्ड में, ताकि आपको अगले पेज से ये नोट्स इजीली अवेलेबल हो पाए और आप इसको प्रॉपरली समरी के फॉर्म में भी पढ़ सको। ठीक है, देखो चाइना ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया है वो ये किया है कि इसने कई सारे इंडस्ट्रीज जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको शट डाउन कर दिया या रिलोकेट कर दिया। ठीक है, शट डाउन और रिलोकेट, रिलोकेट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। रिलोकेट कहां पे? सिटीज से बाहर, ओवर पोल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड एरियाज से बाहर, पहला काम। ठीक है, दूसरा कोक फायर्ड जो बॉयलर्स थे नेचुरल गैस फायर्ड बॉयलर्स से रिप्लेस कर दिए, सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो कोक बेस्ड फ्यूल थे उसको कोल बेस्ड फ्यूल थे उसको रिप्लेस कर दिया नेचुरल गैस से। ठीक है, चाइना 6 वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स, हमारे पास भी है भारत 6, चाइना 6 वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स, वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स हमारे पास है भारत 6, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कितना पुअर है। उसमें कंपलसरी बताया गया है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट फॉर व्हीकल्स, लेकिन दिल्ली में अभी रिसेंटली कंपलसरी चेकिंग एट द फ्यूल स्टेशंस पे आप फ्यूल डलवाने जाओगे पहले पीयूसी चेक होगा, पीयूसी नहीं है तो हैवी फाइन होगा। उसमें कई सारे व्हीकल्स ऐसी पाई जा रही है 30% से ज्यादा जिनका पीयूसी ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, उसके बाद चाइना ने एक और चीज क्या करा, डेंसेस्ट 2.5 AQ मॉनिटरिंग, डेंसेस्ट 2.5 PM 2.5 मॉनिटरिंग फैसिलिटी। पहले मॉनिटर तो करो, मॉनिटर करने के लिए चाइना ने ये वाली फैसिलिटी जो है अभी रिसेंटली क्या करी है, इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, बनाई है। ठीक है, और पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ओके, देन पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस मींस चाइना ने बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लिए तब जाके चाइना ऐसा कर पाया है। अब हम चाइना की पूरी स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइनीज स्ट्रेटेजी है, कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन अभी तक बीजिंग के एक्सपीरियंस से ये सक्सेसफुल है। अच्छा, देन देयर इज ऑल्सो वहां पे एक एयरशेड प्रोजेक्ट। एयरशेड प्रोजेक्ट क्या है? जो नेबरर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, चाइना के नेबरिंग प्रोविंसेस कोऑर्डिनेशन। तो हमको सबसे ज्यादा क्या है, हम उसी पे नेबरर्स पे ही सबसे ज्यादा दिल्ली इल्जाम लगा रहे हैं, दिल्ली से पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, राजस्थान के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा बेटर किया। ठीक है, अब चाइना में अगर आप देखोगे कि एवरेज पीएम कंटेंट कितना था, पीएम 2.5 कंटेंट, इट इज मेजर्ड इन माइक्रोग्राम्स पर cubic meter. It was 103. It has been reduced to 31 micrograms per cubic meter. Okay, because of this strategy. तो सेम स्ट्रेटेजी हम इंडिया में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखोगे हमारे पास कितने ज्यादा लॉज हैं पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड एमिशन नॉर्म्स हैं, जैसे भारत स्टेज 6 भी नॉर्म्स भी हमारे पास, दिल्ली पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2005, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP, है ना, जिसमें हम वो लगाते हैं जैसे जैसे हमारा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है, AQI जैसे भी पुअर परफॉर्मेंस करता है, तो हम अपना रिस्पॉन्स भी क्या करते हैं, क्विक करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में मेजर पॉलिसीज के साथ क्या है, एक्टिवेशन ऑन ट्रिगर, कि जब पोल्यूशन होगा हम तब सोचते हैं, हम पहले से नहीं सोचते कि पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, और पोल्यूशन को ऑड इवन पॉलिसी हमने लॉन्च किया, कितने सारे इनिशिएटिव्स हमारी कंट्री में है, लेकिन कोई भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमने एक कमीशन सेटअप किया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो है एक्टिवेशन ऑन ट्रिगर करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि कैसे हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपना एयर क्वालिटी को बेटर करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, credible implementation of BS6,
भारत जैसे चाइना 6 इमिशन नॉर्म्स है, BS6 का इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। व्हीकुलर नॉर्म्स, व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है ताकि हमारी शिफ्ट हो पाए फ्यूल का, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिवैम्प करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिवैम्प, ठीक है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, उस जैसी पॉलिसीज को और ज्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन को आप एक रीजनल प्रॉब्लम समझो, रीजन के हिसाब से देखो। दिल्ली पंजाब पे हरियाणा पे इल्जाम ना लगा के ये एक ही समझे कि नॉर्दर्न रीजन का प्रॉब्लम है, तो रीजनल एक उसको सोल्यूशन ढूंढे उसके लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है हमारा जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज को ऑन पेपर सिर्फ शिफ्ट नहीं करना, प्रैक्टिकली भी शिफ्ट करना है टू सेफर एरियाज, बेटर एरियाज, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमें जरूरी है। और हमको अपनी क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को जो है वो ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी जो है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको स्पीड अप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। और वो कैसे होगा, अभी उसका एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लाने के लिए किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बेटर न्यूक्लियर हार्नेसिंग के लिए शांति बिल जो है पास किया है, ठीक है। शांति बिल नहीं रहा, अब शांति एक्ट हो गया है 2005, जिसने मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर उसको ओम शांति कह दिया, ठीक है। तो ये है बहुत ही वंडरफुल आर्टिकल। मैर्क्वेर स्कूल की एक ये अमृता नाम्ब्यार, शी इज अ PhD स्कॉलर in Australia, Mercury University. So wonderfully written a comparison between China and India, how we should work towards mitigation of our pollution challenge, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद when misinvestment has many facets. What is misinvestment? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन गलत जगह पे गलत तरीके से, ठीक है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा में, किस लिए, टैक्स बचाने के लिए। ऐसे लोगों को बोलते हैं टैक्स वेस्टर। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, टैक्स वेस्टर, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं ऐसे प्रमोशनल इवेंट से, जल्दी जल्दी जाके वहां पे देखते हैं ओह बाद में खत्म हो जाएगा, मिसिंग, वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो जल्दी जल्दी जज्बाती हो गए, इंपल्सिव होके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनको कहते हैं फोमो वेस्टर। वो भी प्रायोरिटी रिटर्न्स को नहीं देते, बस कहीं उनका स्लॉट ना चला जाए, ठीक है। कुछ लोग ट्रेंड देखते हैं कि फलाना स्टॉक अच्छा जा रहा है, फलानी चीज में इन्वेस्टमेंट अच्छा जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड कभी भी ब्रेक भी तो हो सकता है। ऐसे लोगों को कहते हैं ट्रेंड वेस्टर, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनको कहते हैं हॉट वेस्टर, जिनको क्या कहते हैं, हॉट वेस्टर, ठीक है। हॉट वेस्टर कौन से इन्वेस्टर हो गए, हॉट वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो सडनली क्या देखते हैं, कोई वायरल टिप देख ली, इमोशनल हो गए, फटाफट उनने इन्वेस्ट कर दिया। या कोई देख लिया कि कोई चीज जो है वो सडन प्राइस स्पाइक हो गया किसी शेयर के अंदर, फटाफट ले लेते हैं, पीक पे ले लेते हैं कि इससे भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक इंपल्सिव डिसीजन वो भी होता है, और वो एक्साइटमेंट में लिया जाता है। वो किस में लिया जाता है, एक्साइटमेंट में। तो फिर हॉट वेस्टर और ट्रेंड वेस्टर में क्या फर्क है, हॉट वेस्टर जो है इंपल्सिव डिसीजन लेता है, ट्रेंड वेस्टर ट्रेंड देख के बिना प्रॉपर स्टडी करने के लिए ये लेता है, ठीक है। अब ट्रेंड जो है वो कई टाइम के लिए दिखता भी है, तो ट्रेंड को थोड़े टाइम के बाद डिसीजन लेता है ट्रेंड देख के। हॉट वेस्टर अचानक इंपल्सिव, कोई फटाफट टिप मिली, वायरल टिप मिल गई, ले लिया, ठीक है। उसके बाद आता है रियल इन्वेस्टर या रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, रियल इन्वेस्टमेंट होती है फिर व्हेन यू प्रॉपरली सी कि मैं आज जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट मुझे 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट देगी कि जितना इन्फ्लेशन को भी वो क्रॉस कर जाए, इन्फ्लेशन से जितनी उस टाइम तक इन्फ्लेशन हुई, रुपये की वैल्यू उतनी हुई है, और उसके ऊपर सरप्लस वेल्थ क्रिएशन भी हुआ हो। दे फोकस ऑन एक्चुअली रियल वेल्थ क्रिएशन, दे फोकस ऑन रियल वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ, अच्छा, इसलिए हमको बचना किससे है, मिस इन्वेस्टमेंट से, और फोकस किस पे करना है, रियल इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। दिस इज ऑल आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे इन करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल मीट यू पीपल अगेन in the next class. Okay, thank you.